हाय फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर? So a constructor is a special member method that is automatically called when an instance of a class is declared. A constructor is called when an object of the class is created. So constructor जो है किसको बोलते हैं? ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो कि सेम नेम होता है एज द क्लास नेम्स एंड ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक इंस्टेंस या एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के हम लोग क्रिएट करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर क्या है? इट इज ए फंक्शन, सिंपल। A constructor must have the same name as the class name, same name होगा as the class name. It has no return type, not even void. It is called when the object of the class is created. And last but not the least, it is used to initialize the instance of a variables. And ये instance variables को initialize करने के लिए used होता है। Now these method can only be executed at the time of the creations of an objects. It is not possible to use them later. यानी ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम ये एग्जीक्यूट होता है, दोबारा इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। एंड रिमेंबर दैट जावा क्रिएट द कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली। यानी अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं भी क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, इसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं होगा। However, if we have added a constructor with arguments, then Java will no longer add this constructor for us, and it is our responsibility to add it if we are going to need it. Okay, now in fact for good practice we should always add it that we define a constructor with arguments. So there are two types of constructors. One is default constructors, another is parameterized constructor. Default constructor is without arguments or parameter, and parameterized constructor with arguments or parameter constructor. So there are two types of constructors. So let me define the first one, the default constructor. Say I am creating one class over here, class name summation. So I am giving three variables A, B and C, and now I am going to define the constructor. So here I am giving this public specifier, that is access specifier. Now I am giving this A equal to 10, B equal to 20 and C equals to say A plus B. So here I have defined public summation. Okay, this is the constructor name. Now I am going to define another function, that is sum, and here I am going to just print that value, that is C. And then I am define public static void main string args, and just here I am going to define the objects of that class summation. This is a class name summation, and then write OB is the object name, new is the operator which creates these objects, and then here is the constructor. So ये जब क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा है, एट द टाइम ऑफ दिस क्रिएशंस समेशन जो है ये कॉल्ड हो गया। अब जो है हमको यहाँ पर जो है कॉल क्या करने पड़ेगा? सिर्फ सम को कॉल करने पड़ेगा, because I don't need to call this, okay, this, because ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो अब मेरा जब ob.sum रन करेगा
तो ये मेरे को क्या देगा, 30 देगा एडिशन, बिकॉज यहाँ पर ए में 10 असाइन कर दिया, बी में 20 असाइन कर दिया, एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सी में ए प्लस बी यानी ए और बी का एडिशन आ गया। सो ये एक कंस्ट्रक्टर हुआ दैट इज विदाउट पैरामीटर एंड दिस इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो यहाँ पर आपने देख रहा है कि यहाँ पर कोई वैल्यू सप्लाई नहीं हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिफाइन इज कॉल्ड द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर सेम क्लास से डिफाइन करते हैं, क्लास से समेशन, देन इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं int a, b, c, एंड देन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समेशन से int x, int y and int z. Now a equal to x, b equal to y, c equal to z। तो हमने 3 वेरिएबल यहाँ पर लिए, 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड 3 यहाँ से वैल्यू मेन से आएगा, एंड यहाँ पर जो मेरा एक और फंक्शन जाएगा दैट इज कॉल्ड सम। तो यहाँ पर हमने एक 3 वेरिएबल को ऐड करने के लिए एक और यहाँ पर लोकल वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं दैट इज d। सो d इक्वल टू a प्लस b प्लस c ना, यहाँ पर डिफाइन करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, println दैट इज c। तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर हो गया जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये एक मेरा नॉर्मल मेथड हो गया जो कि विदाउट पैरामीटर्स है। नाउ कॉल, देन यहाँ पर हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main string args, देन यहाँ कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे समेशन, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सॉरी, समेशन ob इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पर जो है समेशन में हम 3 वैल्यू जो है सप्लाई करेंगे, से हमने यहाँ दिया 10, 20 एंड 30। सो 10, 20 एंड 30 किया हो गया, ये यहाँ पर ये आर्गुमेंट्स हो गया, and this is called the actual parameter or the actual arguments, and this is called the formal parameter or the formal arguments. Now हम सिर्फ इसको कॉल करेंगे ob dot sum। so ob dot sum जैसे ही मैंने क्रिएट किया वो जो है ob dot sum जो है यहाँ पर कॉल्ड हुआ, बट इसको हमने कॉल नहीं किया बिकॉज ये कब कॉल हो रहा है, जब ये हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है बिकॉज इसमें हमने वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर हम ये कंस्ट्रक्टर का जहाँ पर ये हमने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये पर 10, 20 एंड 30, यहाँ पर 10, 20 एंड 30 आएगा। देन ए में असाइंड होगा 10, बी में असाइंड होगा 20 एंड सी में असाइन होगा 30, और यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 60। सो इट विल प्रिंट 60। सो हम लोग इसी चीज को एक आईडी में देखते हैं, ब्लूजे आईडी में। सो ये ब्लूजे एनवायरनमेंट्स में हम जो है समेशन एक क्लास मैंने बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 वेरिएबल हमने दिया, इंस्टेंस वेरिएबल्स ए बी सी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर का एक डेफिनेशन हमने दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर सेम नेम होगा, और कोई भी
कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। ओके, तब आप समझ जाइए कि ये कंस्ट्रक्टर है। नाउ अब ए में हमने 10 दिया, बी में 20 दिया, यानी हमको ए को 10 को इनिशियलाइज कर दिया, बी को 20 से इनिशियलाइज कर दिया, एंड सी को इन दोनों के ऐड से इनिशियलाइज कर दिया। देन एक यहाँ पर एक मेथड बना रहे हैं विदाउट एनी पैरामीटर्स। इसमें सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वो जो यहाँ पर 30 आया है इसको हम जस्ट प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, दैट इज जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉल होगा ऑब्वियसली। सो समेशन क्या हो गया, एक क्लास का नाम हो गया, एंड यहाँ पर जो ओबी है ऑब्जेक्ट हो गया। न्यू क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि इस ऑब्जेक्ट को बना रहा है, एंड समेशन जो है ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहा है जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए ओबी डॉट सम को मैंने कॉल किया, इसमें हम समेशन को कॉल नहीं कर रहे हैं बिकॉज समेशन ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहा है। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करके देखते हैं कि मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये 30 आया। सो ये विदाउट एनी पैरामीटर है, एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना। अब जो है हम चाह रहे हैं कि इसमें जो है पैरामीटर दें, तो यहाँ पर हम दो वैल्यू पैरामीटर एक प्रोवाइड करते हैं, x एंड int y, एंड इस x को यहाँ पर हम डाल देते हैं एंड इस y को इस यहाँ पर डाल देते हैं, यानी a असाइंड हो गया x से, b असाइंड हो गया y से। अब यहाँ पर हमको दो वैल्यू सप्लाई करना है, से हम यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं 50 कॉमा से 40। सो 50 कॉमा जो है 40 मैंने दे दिया, तो 50 कहाँ पर जाएगा, इस x में जाएगा, एंड 40 आएगा इस y में। तो a में क्या हो गया 50 एंड b में हो गया 40। सो c इक्वल टू a प्लस b, तो इन दोनों का एडिशन इसमें आ जाएगा c में, एंड देन हम इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमको दिखाएगा इसका टोटल वैल्यू। सो आइए देखते हैं कि इसको कंपाइल करते हैं। आफ्टर दिस कंपाइलेशंस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 90। ओके, सो यहाँ पर जो है 90 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार और देखते हैं। समेशन क्लास का नाम, देन इंस्टेंस वेरिएबल एबीसी, यहाँ पर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना है जिसमें हमने दो पैरामीटर दिया है और आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं। देन int y, int x, दो मैंने वैल्यू दिया, एंड x को a में असाइन किया, y को b में असाइन किया, एंड a प्लस b को c में असाइन किया। एंड जस्ट एक और मेथड यहाँ बना रहे हैं, सम वॉइड सम, एंड यहाँ पर उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। जब हम मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे OB विद द हेल्प ऑफ दिस समेशन क्लास, तो यहाँ पर हम दो वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द आर्गुमेंट्स, एंड ये वैल्यू जो यहाँ पर आएगा, तो ये जो एक कंस्ट्रक्टर है, इट इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। सो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है कंस्ट्रक्टर के ऊपर जो है, इसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टर के बारे में, कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।